Bismillahirrahmanirrahim. This is day 8 of our CAPS calculation, and today we will cover moles, equivalents, and osmoles. We have seen these three things in our first day lecture, where we were discussing about the units. These are actually moles, equivalents, and osmoles are the units. Just like grams, there are moles, equivalents, and osmoles. And at the level of milligram, we have millimoles, milliequivalents, and milliosmoles. So the difference between moles and millimoles is just of units. Equivalent and milliequivalent, osmole and milliosmole, सर likewise. आपकी आवाज सर नेगेटिव थी। ये बाकियों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर सही आ रही है। जी सर सही आ रही है। अच्छा, मेरी तरफ से ना आवाज फुल है। हाँ, आवाज सही है सर। अच्छा ठीक है जी, आई विल कंटिन्यू। अपनी तरफ से प्लीज कोई देखिए एडजस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं तो। अच्छा, ग्राम्स के लेवल के ऊपर देखें तो मोल इक्विवेलेंट और ओस्मोल आएगा। अगर हम मिलीग्राम के लेवल पे देखेंगे तो मिली मोल, मिली इक्विवेलेंट और मिली ओस्मोल आएगा। दिस इज इंटरचेंजेबल। मोल्स को मिली मोल में कर सकते हैं, एमईक्यू को मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमें चेंज करना पड़े, क्योंकि क्या होगा कि समटाइम आई विल बी कॉलिंग मिली मोल, समटाइम आई विल बी कॉलिंग मोल, ओस्मोल, मिली ओस्मोल। So you should know that the this is just about the units. Now somebody tell me how many moles are in 1000 millimole? 1 मोल। 1 मोल। One mole. अच्छा, anyone, everyone can speak. It's not like that कि 1 मोल। एक दो बंदे बोल रहे हैं तो चलो ठीक है। वन मोल। पार्टिसिपेट, माशाल्लाह। 1 मोल सर मिली का बताओ सर। Yes. Okay, next. One mole is equal to how many millimoles? 1000। 1000। 1000 मिलीमोल। 0.001। No, no, no. 1000 मिलीमोल। 1000 millimole. We are coming वन from 1000। gram to 1000 मिलीमोल, milligram. सॉरी सॉरी सॉरी। No problem. Mistakes are more than welcome here. Then, what about 1000 MEQ? How much equivalents are there? 1। One. 1 इक्विवेलेंट। One. This is just like वन conversion between milligrams and grams. So that's it. We are not going to need it most probably in our questions, but this is just for your understanding. Now we know the formula of mole. We have read it in our chapter 1. The formula is very simple. I'll make it even more simpler for myself. I would not write N here. I will write full thing. Moles is equal to mass divided by molecular weight. And if we go one step further, I do not write this mass thing either. I would just write gram or milligram. That's it. Because this is for my own question solving. I do not have to show this to any teacher. So moles is equal to mass by molecular weight. And we are going to use a manipulation of the same formula, that is mass is equal to mole multiplied by molecular weight. If we want to measure the mass and moles are given, then we can take this molecular weight on this side and it will multiply with moles. This is it. Mass is equal to moles multiplied by molecular weight. Is this clear to everyone? Because we are going to use this a lot of time almost in all the questions. यस इट्स यस। क्लियर। Excellent. The next सर thing is मोल मोल क्या होता है? सर मोल क्या होता mole एक चीज है यार। जिस तरह इक्विवेलेंट होती है, हम कहते हैं कि इसके अंदर कितने मोल्स हैं। इसको आगे चल के फिर आपको समझ लग जाएगा। मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता मोल को यहाँ पे, वो तो आपको डेफिनेशन में देखना पड़ेगा। लेकिन कंसीडर कर लें कि मोल इक्विवेलेंट और मिली ओस्मोल, ये जो फार्मूला होता है ना केमिस्ट्री का, एक पूरा सॉल्ट होता है, उसके अंदर से सोडियम निकलता है। जैसे NaCl हो, एक सोडियम निकलेगा, एक क्लोराइन क्लोरीन निकलेगा, तो हम उसको कहते हैं कि 1 मोल NaCl, 1 मोल सोडियम का, 1 मोल क्लोरीन का या क्लोराइड का। तो ये मोल जिस तरह मैस होता है ना, उसी तरह ही आप समझ लें मोल भी एक चीज़ है, एग्जिस्ट करती है केमिस्ट्री के अंदर। आगे चल के देखते हैं, आपको मजीद इसको अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। मैं बहुत
अच्छी कोई डेफिनेशन नहीं आपको दे पा रहा है इसकी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये है, the same formula we can write it down for millimoles as well. If we are about to find millimoles, give the mass in milligram. That's what the first slide was about. We can play on gram level, we can play on milligram level. So if we are about to play with the milligram level, then we will take everything in millimoles. The answer will be okay. Answer will be also in milligrams. Take a look here. If we give the mass here in grams, the answer is going to be in moles. If we give if the mass in milligrams, the answer will be in millimoles. We are short a time in paper two, so we will not be converting grams into milligrams a lot. We'll see at the start of the questions what is the unit we need to take. If the question requires us to answer in milligrams, we will take the milligram formula from the start. Is this clear to everyone? We can replace this gram with milligram and then we will be playing in milli level. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Excellent. Now moving forward, I want you to solve some questions for me. Based on the formula I have just shown you, how many grams of NaCl are equivalent to 1 mole? Be quick. This is one line formula and you should be solving it within 30 seconds, I would say, 58.5. by using the formula, 58.5. right? So what is the formula we will use? How many grams? So grams are here of NaCl are equivalent to 1 millimole. You need to use the formula that we have discussed on the last screen. Anyone who is not able to do it with formula, anyone, you can ask now, because in the upcoming questions we will be going more deep. Everybody, this answer is clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Okay, somebody Yes, speak sir. the formula to me. Anybody? Number of moles is equals to mass in gram upon molecular weight. So we will do it mass Molecular in weight. grams is equals to moles into molecular weight. So as mole is 1, so it will be 58.5. Yes, yes. Okay, next question. Zero 0.5. Will be 0.5. Yes, it will be 0.50. 69.1 divided by Mole. 138.2. 0.5. Yes, excellent. Excellent. Anybody who is not able to do this, then I'll show you how we are doing this. No, sir. No. All right. Third, the last one for this level, how many milligrams of NaCl are present in 2 millimoles? 117. 117. Excellent. I'll go 117. one step. I will go one step 117 backwards. mg. Yes. Take a look. 117. In the question, they are saying how many grams. In the first question, in second question, how many moles, and in the third question, how many mg, mean how much mass. What we will do, we will be using for mass, directly write this formula, moles multiplied by molecular weight. And whenever they say how many moles, or we need to find out how many moles, this is the formula you should use. It should be on your fingertips because we are going to use it a lot in upcoming questions. Now let's understand the equation. This is the heart and soul of these moles questions. If you understand the equation, it is very important. I am ready to teach this again and again, 10 times, 20 times, 100 times. So I want everyone to understand this. If we have an equation like this, magnesium chloride, MgCl2, this will give us magnesium. This is the valency. Valency comes up here, and this is chlorine. Whatever is written here downwards means there are two of these atoms. Magnesium comes here, and we know
I think magnesium 2 plus should be written here also, but it's okay. Magnesium, we know the valency is 2 plus. We will learn some valencies of about 4 to 5 elements in case they won't give us in the exam. Otherwise, these things should be given in your exam. Magnesium has a valency of 2 plus. So these two under the chlorine means there are two chlorines. Is this thing clear? Whatever is written down here, that means the two of these atoms are present. Magnesium chloride है, This magnesium equation, this equation is given in paper. पेपर के अंदर ना ये सिर्फ ये होगा आपके पास MgCl2 बस बस। इससे डरना नहीं है, पता क्यों? आगे चल के हम देखेंगे कि अगर इक्वेशन बड़ी सारी लिखी है ना, यहाँ से शुरू होती है इक्वेशन, यहाँ तक आगे खत्म होती है। हमें हमें कंसर्न है सिर्फ क्लोरीन से, तो हम यहाँ पे भी सिर्फ क्लोरीन देखेंगे, हम यहाँ पे भी सिर्फ क्लोरीन देखेंगे इन दिस पार्ट ऑफ द इक्वेशन। ये बाकी नहीं देखेंगे हम लोग। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये समझ, ये वाली जो केमिस्ट्री ओके। नहीं आती ना, केमिस्ट्री मुझे भी नहीं आती, तो लेकिन हम गुजारा कर लेंगे इससे। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये पॉइंट सबको क्लियर है कि ये जो दो नीचे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये दो हैं क्लोरीन। यस सर। अच्छा, यस। अगले चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मिली मोल कितने होते हैं। अब मैं मिली मोल में बात करूं या मोल में करूं, या अब आपको पता है कि ये जस्ट यूनिट्स हैं। हम मिली मोल्स में कर लेते हैं क्योंकि वी विल बी यूजिंग मिली मोल्स मोर इन आवर क्वेश्चंस देन मोल्स। अब मिली मोल की बात करें तो ये जो पूरा है ना MgCl2, जब तक ये इकट्ठा है ना, तो ये एक ही काउंट होगा, और इक्वेशन के इस तरफ एक ही काउंट होगा, ये मिली मोल 1। अब ये जो मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी वट एवर कुछ भी रहे, मैग्नीशियम तो एक है ना, तो ये मिलीमोल फिर भी एक ही रहेगा। इन केस ऑफ क्लोरीन, क्योंकि ये दो थे, यहाँ पे जो दो है ना, इसका बड़ा ध्यान रखना आपने, ये दो हैं, तो इसका मतलब है कि मिलीमोल भी दो होंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। तो सर वैलेंसी का कोई इफेक्ट यस। नहीं पड़ेगा आज? आगे आने वाली चीजों पे पड़ेगा, अभी मिलीमोल्स या मोल्स के ऊपर नहीं पड़ रहा। ओके। अच्छा, ये अब इससे आगे चलते हैं, MEQ आ जाता है, मिली इक्विवेलेंट आ जाता है। मिली इक्विवेलेंट के अंदर ये फिर बन ही रहेगा। अच्छा, ये ना इक्वल टू मोल मिली मोल के साथ ही चलता है, इक्विवेलेंट भी। हम पढ़ेंगे भी आगे इसको इकट्ठा ही। सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आता है, आप ये देखें, ये फार्मूला ओके है, पूरा है, 1 है मिली मोल, ये भी 1 ही रहेगा, ये ऑलवेज दिस साइड ऑफ द इक्वेशन 1 ही रहेगा मिली मोल की तरह ही। फिर ये क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन दो थे, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, ये इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब है 1 ही है। तो ये मोल कितने थे, दो, और MEQ भी दो ही रहेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 1 ही है। अब जिनकी वैलेंसी होती है ना ज्यादा, अब ये प्लस के अंदर हो या माइनस के अंदर हो, डजेंट मैटर, इफ दिस इज इन प्लस और माइनस डजेंट मैटर, दिस नंबर मैटर्स, then the MEQ will be affected and we will say there are two MEQs of this atom. रिचार्ज करा देना, आज बहुत मुश्किल से चल रहा है। Sorry, एक दफा और बता देते हैं। MEQ के अंदर, MEQ चीज क्या है? MEQ टोटली मिली मोल के साथ ही चलती है, जैसे मिली मोल चल रहा है 1 1 2 2। अब क्या डिफरेंस कहाँ पे है कि ये जो वैलेंसी आएगी ना, हमारी वैलेंसी, ये इफेक्ट करेगी MEQ को। अब जहाँ तो 1 है, वहां तो फिर सेम एज मिलीमोल ही चलेगा, लेकिन जहाँ पे ये 2 हुई ना या 3 हुई, तो फिर ये आप मल्टीप्लाई कर लें मिलीमोल को वैलेंसी से, तो ये भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो MEQ का डिफरेंस पता चल गया आपको। MEQ ओनली डिफर्स फ्रॉम मिलीमोल्स व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वैलेंसी। बेसिकली अगर हम सर वैल्यू को देख के Cl मिली इक्विवेलेंट करते हैं MEQ। एक मिनट, एक एक करके मिस सूर्या आप पूछें। MEQ वैलेंसी पे डिपेंड करता है, जितनी वैलेंसी उतना MEQ। उतना MEQ, और प्लस हो सकता है कि अगर ये क्लोरीन 2 है यहाँ पे और इसकी वैलेंसी भी 2 दो हो, क्लोरीन तो फिर वो 4 दो हो जाएगा। क्लोरीन है तो उनकी एक एक वैलेंसी है, तो पर 2 उनकी हो एक गया। होती है। हम्म। 2 क्लोरीन है तो 2 हो गया, क्योंकि दो दो वैलेंसी हो गई। हाँ जी। अगर मैग्नीशियम एक है ना,
मैग्नीशियम 1 है, वैलेंसी 2 है, ये 2 हो जाएंगे। अगर मैग्नीशियम 2 होते फिर क्या होता? चले मुझे 4 बताएं। मैग्नीशियम 2 होते और वैलेंसी 2 होती तो MEq क्या होता? 4 4 4। ठीक है। क्योंकि ईच एक मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती। एक्सीलेंट। कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था अभी? सर मेरा क्वेश्चन भी सेम ही था, तो ठीक है। आंसर हो गया। चले 1 मिनट आगे चल के थोड़ा सा और क्लियर होता है इसको। मिली ओस्मोल पे देखते हैं। मिली ओस्मोल इज एसेंशियली इज इक्वल टू मिलीमोल। वट एवर मिलीमोल्स आर और मोल्स आर, ओस्मोल और मिली ओस्मोल सेम रहेंगे, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैलेंसी का भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस था MEq का। तो इसको अगर हम कोई कंफ्यूजन हो रही है ना किसी को, तो हम इसको वेरी सिंपली ये देख सकते हैं कि मिलीमोल multiply by valency is equal to MEq. Where you are confused, find out the millimole. This is the baseline of total whole chapter. When we learn this, we automatically learn these two. So learn this: millimoles multiplied by valency is equal to MEq. Find out the millimoles and then multiply it by valency, and you will get MEq. And this concept will get clear when we move along. The millimoles are essentially is equal to milliosmoles. Is this thing now clear? Yes, sir. Yes, Excellent. We sir. will practice it now. चलो जी शुरू हो जाए। अब हमने कन्वर्ट करना है इस मिलीमोल टू इक्विवेलेंट्स के अंदर, क्योंकि हमें ये पता है कि मिलीमोल्स आर इक्वल टू मिलीओस्मोल। देयर इज नो नीड टू प्रैक्टिस कन्वर्जन बिटवीन मोल एंड ओस्मोल्स। वी विल प्रैक्टिस कन्वर्टिंग बिटवीन मोल्स टू इक्विवेलेंट्स। ओके। फॉर सोडियम 1 mole equal to how much EQ? 1 1 Everyone One. speak. One, वन। one, One, माशाल्लाह। पोटेशियम 1 2 One. 1 one, 1। One. कैल्शियम One. two, two, टू। two, 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 two. One. Calcium 2। equivalent. two. टू। Equivalents Magnesium are 2, 2. Magnesium 2. Now for two, oxygen टू। two, 2 Two. 2, Oxygen valency two. because this doesn't matter. Plus or minus doesn't matter. From equivalents to sodium of same salt, sodium 2 to Two. 2 two, वन। Two. वन। Two, two, 2 it's 2 oh 1 because 1 because two, this two, is two. this is सर same. This is the valency is 1. So One. 2 MEq is equal to 2 millimoles. Now okay 3 equals for 3 potassium, Three, three, 3 थ्री। equals to 3 Three. because three. this is 1. Now for ओके, calcium डिवाइड होगा। one, वन। Four. 1 1, वन। magnesium Four. One. टू। 2 Two. two, 2, Two. and now पॉइंट Two. oxygen फाइव। पॉइंट फाइव। 2 हाँ सर ये कैसे हो रहा है? point पॉइंट five, फाइव। Point five. point पॉइंट five. फाइव। it's zero point 0.5. So this can Half. go Half. under 1. This is half, वन बाय टू। 1 divided. So the moving back and forth of this equation is very important. We will be moving in every question. We will move back and forth of the start of the equation and end of the equation. If we have to move between EQ and mole, you got the concept. It will get clear over time. Now moving forward in our presentation. This is the question, very simple one. Should not appear in your CAPS exam. It is that simple. Everyone, please mute your microphones. Thank you. All right, how many moles result from the dissociation of sodium sulfate? This doesn't matter. You should not be paying concentration to this part. Just go with this, what we need. And you will see, they will give you formula and they will be talking about moles. This means this is this chapter of question. Working here, how many moles may result from the dissociation of this formula? We write the equation Na2SO4. This is 2. So this 2 is coming here. What I would say is to write it down below the formula, just like this. 1 is giving us 2 and 1. When we are talking about mole, I'll be doing it this way. I'll write this down, that how many moles are this. This formula is 1. This is giving us 2 sodiums, means 2 mole, and SO4 is 1 mole. If you are looking at how would I see that S and O4 is not going to be separated, don't go
Don't fall for this for now. It's not important. Some of these you will get in practice here in this file, and others it doesn't matter because most of the time they will be talking only about one element. Then we will focus only one. We won't care about this. But for the sake of this question and for understanding that how many moles resulting total number of moles result from the dissociation. So this is 2 and this is 1. Everybody understand this 2? Why there is 2 here? सर बट हमें तो खाली Na2SO4 दिया हुआ होगा ना, ये तो आगे का हमें खुद करना है ना। विद प्रैक्टिस ही आपको आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ना आपने टेंशन नहीं लेनी इस अगर चीज की कि हमने हमें 2 नहीं केमिस्ट्री लगाया नहीं होने आती। से पहले तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। इसको अभी आप इजी हो जाए इस बैलेंस हवाले करना से। जरूरी। आपको बैलेंस केमिस्ट्री के बैलेंस अंदर करना होगा सर। जी जी वैलेंसी याद रखनी बैलेंस है। करेंगे तो वो आ जाएगा ना आपको। एक ये बैलेंसिंग करेंगे तो। नहीं बैलेंसिंग जी सर। वैलेंसी बैलेंसिंग जैसे की वहाँ तरफ पे नहीं एन जाए। टू है। बैलेंसिंग की तरफ नहीं जाए आप। यू विल सी के जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसके अंदर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री जो है ना वो आपको आनी जरूरी नहीं है यहाँ पे। आपका काम उसके बगैर हो जाएगा। बस जितनी कि आप सीख लेंगे ना यहाँ पे वो उतनी इनफ होगी आपके लिए। जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है ना वो भी नहीं करनी है हमें यहाँ पे। हमें सिर्फ ये मोल्स तक हमने आना है इन तक। वो इन्हीं से हमने आगे सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन। हमने नहीं दोबारा जाना ये सोडियम समथिंग। बस वो देखी जाएगा बाद में। जो वैलेंस ये लिखा है ना आपने टू। वैलेंस टू आपने किस लिखा होगा ना कि इसके वहाँ पे Na2 है तो यहाँ पे हमें 2 मोल्स लगाने हैं Na हम्म के साथ। हम्म तो जी ये तो बिल्कुल। जस्ट मतलब इक्वल कर लेना दोनों को तो बैलेंसिंग। इन दोनों को सोडियम को और इस सोडियम को। जी जी हाँ सोडियम जी को हाँ जी सोडियम हाँ को जी अगर बिल्कुल। हमें। यहाँ पर 2 लिखा होगा ना नीचे अगर तो आपने इसको 2 समझना कि ये 2 बनेंगे आके। और फिर मोल्स भी 2 ही जी जी बनेंगे। अच्छा अब कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है? सर मैं पूछ रहा था कि वैलेंसी तो फिर याद ही रखनी पड़ेगी कि ऊपर दो में हो रहा इसको है तो वो तो ये ना ये कंपाउंड है पूरा। ये SO4 जब भाई। ये एक पूरा कंपाउंड होगा ना जस्ट लाइक हेयर यहाँ पे भी ये इसके अंदर वैलेंसी है जो लिखी नहीं हुई है आपके पास। इसको आप एक ही हाँ लेंगे। वही तो जैसे मिली इक्विवेलेंट में तो अगर वैलेंसी टू होगी तो मिली इक्विवेलेंट में टू ही आएगा तो वो फिर याद रखना पड़ेगा ना वैलेंसी कितनी है। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिनट ठहरे यहीं पे रुक जाए। सभी 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 सुन लें कि होने क्या वाला है। आप ना सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं जैसे ये यहाँ पे सोडियम है। आपको ना ये SO4 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तो यहाँ पे ये कोई सोडियम या कैल्शियम होता ना 2+ तो उसकी तो आप टेंशन लेते। अभी ये जो SO4 है ना ये इटसेल्फ एक कंपाउंड है जस्ट लाइक हियर Na2SO4 इक्विवेलेंट लेंगे तो इसका भी 1 ही आएगा। ये अच्छा गया आप लोगों ने क्लियर कर लिया। ये आप लोग रट्टा मार लें इसको या बस याद रखें इसको कि ये इक्विवेलेंट इस तरफ इक्वेशन के भी 1 ही आएगा। तो जस्ट लाइक दिस ये SO4 जो है ना ये भी S अलहदा सल्फर अलहदा ऑक्सीजन अलहदा है। तो इसको भी 1 ही आप काउंट करेंगे। और ये काउंट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि हम सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो वो एक्स्ट्रा जो है ना वो एक्स्ट्रा माइल जब आप ये सीख चुकेंगे ना तो उसके बाद आप जाके तो उसको भी लर्न कर लें अगर करना चाहते हैं। पहले ये करें जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा इन्होंने हमसे पूछा था जी कि हाउ मेनी मोल्स बनेंगे आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। वो हमने इनको बता दिया कि अच्छा एक मोल इधर एक ही रहता है मोल। पर नंबर इधर ऑफ जो मोल्स भी दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला से और एक इस मेथड से भी, अगर इक्वेशन दी हुई है नंबर ऑफ मोल्स। आप ना ये फॉर्मूला इक्वेशन से भी। लिखें। इक्वेशन लिखें क्योंकि ये इक्वेशन ही हम आने वाले क्वेश्चंस में लिखने वाले हैं। इक्वेशन लिखें इस तरह से आपको पता लगेगा अच्छा 2 मोल इसके आगे और 1 मोल इसका आगे। अच्छा ऐसा करें आपके आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आगे आगे आंसर होने वाले हैं। तो आप यहाँ से हम आगे चलते हैं ताकि हम आगे देखें। इसका समझ आ गया सबको? इक्वेशन आपने लिखनी है इस तरह से। जी सही है। यस। 1 मोल यही इधर 1 ही यस रहेगा। सर। इसके 2 आगे 2 क्यों आए क्योंकि ये सोडियम के साथ 2 लगा हुआ था और SO4 को 1 काउंट कर लें टोटल 3 मोल आगे। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में। इसी तरह ये हमसे एक और चीज पूछते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये 1 स्टेप आगे जाएंगे इससे हम ये सेम नहीं है उससे। ये हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यील्ड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। हमसे पूछ रहे हैं कि इसके कितने मोल्स इसके कितने मोल्स इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं MgCl2। इसमें क्या आया आगे Mg
और आगे 2Cl। 2Cl क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ Cl के नीचे, यहाँ पे 2Cl आया। हमने यहाँ पे मेंशन किया कि 1 मोल, 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल आया मैग्नीशियम का, क्योंकि मोल के अंदर ये वैलेंसी का कोई अमल दखल नहीं होता। फिर 2 आगे मोल क्लोरीन के। इस तरह से इक्वेशन लिखा करनी है आपने अब आगे। तो इसमें क्या आएगा अब? ये 1 के मुतालिक ये बात की है इन्होंने कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम विल बी yielded बाय 1 मोल ऑफ MgCl2। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये इक्वल है। वो इसका भी 1 मोल बना, इसका भी 1 मोल बना। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि 1 मोल ऑफ MgCl2, 1 मोल ऑफ MgCl2 प्रोवाइड्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। ये कन्वर्जन होगी बैक एंड फोर्थ जो हम क्वेश्चंस के अंदर कर रहे होंगे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस सब्सटेंस विल गिव हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस सब्सटेंस, या वाइस वर्सा कोई भी। कि हमारे पास मैग्नीशियम के 2 मोल्स हों तो इसके कितने मोल्स होंगे? 2। 2 दो 1। होंगे। मोल होंगे हाँ, 2 मैग्नीशियम मोल के। होंगे क्योंकि मैग्नीशियम के दो। ये यस इक्वल सर। चल रहा है, चीजें इक्वल चल रही हैं। इक्वल्स हैं, हाँ। क्योंकि इसके 2 मोल ओके होंगे, सर। इसके भी 2 होंगे, इसके 2000 मोल्स होंगे, इसके भी 2000 मोल्स होंगे। 2000। 2000 मोल। तो ये ना बैक एंड फोर्थ जो हमने भी पीछे पढ़ा है ना, इक्विवेलेंट्स, वहाँ तंग करेंगे आगे थोड़ा सा हमें। या बाजूकात अगर आपसे ये पूछें, क्लोरीन का पूछ लेते हैं फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में, चले आप ये बताएं कि 2 मोल ऑफ क्लोरीन कितने मोल ऑफ MgCl2 देंगे हमें? 1। 1। 1 वन मोल। मोल। 1। 1। 1 मोल। 1 मोल। और हाँ, अगर इधर से इधर आए तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ दिस सब्सटेंस। सही। यस ये सर। ये ही हार्ट एंड सोल है इस पूरे टॉपिक की। बाकी जो है ना वो आएंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएंगी, कुछ कुछ ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है ग्राम मोल्स का और ग्राम का, उसी की मैनिपुलेशन, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस पूरे टॉपिक के अंदर। अच्छा, इसको ना ओके। समझने के अंदर कुछ हमारा टाइम लग गया। अभी ये मीटिंग ना एंड हो जाएगी कोई 7 मिनट में, फिर दोबारा ज्वाइन करनी है सब लोगों ने, फिर 10 मिनट के बाद। अच्छा, अभी यहाँ से आगे चलते हैं। अब आप मुझे ये सॉल्व करके दिखाएं जल्दी से सारे। अपने पास वही उसी तरह इक्वेशन लिखें। ये वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे मैंने आपको दिखाया है। रजिस्टर पे इक्वेशन लिखें, क्वेश्चन है तो मुझे पूछें, अभी पूछें, अभी क्लियर करता हूँ मैं उसको। तो मुझे ब्लैंक नजर आ रहा ब्लैंक? ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, हाउ मेनी मोल्स रिजल्ट फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट। है, जूम इन हुआ था। जी सर हो गया। ओके। ओके, जी सर। एक्सीलेंट। एक कर भी लिया जी एक ने। यस सर 3 मोल्स ऑफ टोटल थ्री सोडियम मोल्स। सल्फेट। गुड। अच्छा, कोई रह गया हो? सर डन। चलें जी, मेरा ख्याल है आगे चलते हैं और ये वाला करें अब। यही तो सर आपने पहले करवाया था, वही हाँ वाला। जी, यही किया। ये अब आप अपने हाथ से रजिस्टर पे करें। ठीक है। 1 आएगा 1। 1 वन आंसर वन आएगा आंसर। आंसर। हाँ जी। 1। तो यहाँ तक जिसने कर लिया ना, और जिसको फार्मूला समझ लग गया और जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है, जो जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स थी ना चैप्टर 1 2 3 के अंदर, और जो आप लोगों ने फेस किए हैं एपेक के अंदर, कि ये दो दो दफा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग रही है, एक दफा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में से आगे, PPM में से आगे, बस और कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर। आसान है। जी सर। यस सर। जी सर। चल, ये जो केमिस्ट्री है ना इसको छोड़ दें, केमिस्ट्री का कोई अमल दखल नहीं है, ये कैलकुलेशन नहीं है, जो जिसको डर लग रहा है ना तो वो आगे चल के भी खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम इससे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में भी आ सकता है, और इसका क्या आपने फ्लो बनाना है, और यही फ्लो थ्रू आउट आवर क्वेश्चन इस्तेमाल होगा। अब ये है, मेरी वीडियो तो नहीं लैप करती ऊपर इसके स्क्रीन के ऊपर, कि आपको कुछ नजर ना आ रहा हो? इट्स फाइन, नो ठीक सर। है। कोई चीज छुपती तो नहीं है वीडियो के पीछे? नो सर। नहीं नो नहीं। सर, वो ऊपर नीचे ठीक हो है। जाते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये क्वेश्चन हमें कहता है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम का, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑफ दिस फार्मूला, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दिस फार्मूला, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दिस फार्मूला कंटेन्स 1000 mg ऑफ सोडियम। ये देखें, अब ये एक के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, सिर्फ पूरी इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन के अंदर से। तो मैंने इसको पढ़ना भी दोबारा नहीं किया, छोड़ दें, हमें नहीं जरूरत। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है जी इसका इतना। अब ये ऐसी चीजें हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, इसकी शक्ल देख के आपको पता चल जाएगा कि ये हमने मोल्स के जरिए सॉल्व करना है, क्योंकि बात कर रहे हैं सोडियम की, और फार्मूला दिया हुआ इतना बड़ा सारा हमें एक, इसमें से हम सिर्फ सोडियम को कंसर्न करके बाहर निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी, ये यहाँ पे लिखे Na2CO3 10H2O, ये देखें, इससे आगे सिर्फ और सिर्फ सोडियम लिख लें, हमें सोडियम से सरोकार है बस, बाकी जो है ना छोड़ दें इसको। अब ये सोडियम कितना है हमारे पास, जो दिया हुआ कंटेन्स 1000 mg ऑफ सोडियम, यहाँ पे मेंशन कर ले कितना है ये वाला सब्सटेंस। ये चीज ना आपको दी ही होगी, कोई किसी एक की दी होगी और दूसरे की फाइंड करनी होगी। तो हम पहले उतरेंगे जरा नीचे इस रास्ते से, तो हम मोल्स को कन्वर्ट करेंगे, मोल्स के अंदर आएंगे, फिर ये देखेंगे कि अच्छा 2 in 1 है, फिर हम थर्ड स्टेप में वापस मैथ्स में आ जाएंगे कि मैथ्स कितना बनेगा। तो हुआ क्या है, हमने मोल्स के अंदर कन्वर्ट करके कंपेयर किया है कि यार इसके 2 मोल्स हैं, इसके 1 मोल हैं। अच्छा, तो ये इतना है, 1 ग्राम है, तो ये कितना बनेगा इन टर्म्स ऑफ मोल्स, क्योंकि डायरेक्टली नहीं जा सकते कि अच्छा 1 ग्राम, 1 ग्राम है, 2 मोल हैं, इधर चले जाएं तो हाफ ग्राम हो जाएगा। ये नहीं कर सकते, हमें मोल्स के साथ चलना पड़ता है कि इतने मोल्स ऑफ सोडियम, ये ये कितने बने, कितने मोल्स हैं, फिर इसके अंदर पहले फॉर्मूला में देखते हैं कि अच्छा इसके कितने ग्राम बनते हैं इतने मोल्स के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंट होंगे। सोडियम का वेट कम है, मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट ज्यादा है। जो जो तो हमारे पास चीज़ें चाहिए होंगी ना, जैसा कि हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होते हैं, तो वो सारे लिखे होंगे क्वेश्चन के अंदर, वो भी याद करने की जरूरत नहीं। तो केमिस्ट्री बहुत बहुत मिनिमल सी चाहिए हमें इसके अंदर। अच्छा, हम इसके डिटेल में उतरते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया 1 ग्राम हमारे पास अवेलेबल है सोडियम। यहाँ हमें ये भी पता लगा कि अच्छा ये 2 है, तो ये भी 2 आएंगे और 2 मोल्स बनेंगे। यहाँ पे ये चीज़ मैं अपने लिए लिखता हूँ, और आप देखें अगर आपको सूट करता है आप भी लिख लिया करें कि ये कितना बनता है, ये 1 और ये 2। यहाँ तक क्लियर है, ये हम कर आए हुए हैं यहाँ तक। आगे अब क्योंकि हमारे पास क्लियर है। वैल्यू यहाँ की दी है, तो हम क्लियर है यहाँ से सर। डीप जाना शुरू करते हैं। मोल्स का वैल्यू लिखे, मोल्स निकालें कितने बनते हैं। अच्छा, ये देखें, अब हम मोल लेवल पे रहेंगे या हम ग्राम मिली के लेवल पे रहेंगे। क्वेश्चन के अंदर एक जगह पे ग्राम दिया हुआ है, एक जगह पे मिलीग्राम दिया हुआ है, जो आंसर है ना वो हमें ग्राम में चाहिए। तो आप अभी उसको कन्वर्ट कर लें, इसीलिए मैंने ये 1000 mg को कन्वर्ट करके 1 ग्राम में लिखा है। इतने तो अब हम प्रोफेशनल हो चुके हैं कैलकुलेशन कर करके कि ये तो हम बिल्कुल उसी वक्त कर लेते हैं, अब एंड पे जाके नहीं हमें करना पड़ेगा। अच्छा, 1 ग्राम आ गया, ये फॉर्मूला लिखा, मोल्स इज इक्वल टू 1 ग्राम, यही आता है ना मैस बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 1 आप ग्राम में लिख रहे हैं तो आंसर मोल्स में आएगा, क्योंकि हम ग्राम के लेवल पे हैं। अच्छा, 1/23, ये आंसर आ गया जी, इतने मोल्स हैं हमारे पास 1 ग्राम के अंदर सोडियम के। अब ये नीचे आएगा, सेकंड स्टेप के अंदर हमने अब इसको लेके जाना है इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड पे, या तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इसका 1 मोल, ये हमें ये 2 मोल दे रहा था, तो कितने मोल बनेगा 0.043 मोल के अंदर। ये हमें एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है हमारे पास। हमने सिंपल कन्वर्ट किया कि 1 मोल इसका हमें दे रहे हैं, 2 मोल इस सोडियम के, तो कितने होंगे जब 0.043 होगा। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, या आप ये कर सकते हैं सिंपली इसको डिवाइड करें 2 से, तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि 2 to 1 जाना तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। अगर कंप्लेक्सिटी हो रही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लें। आपको ये मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये बंद होने जा रही है, तो मुझे अपने 10 मिनट का टाइम देना है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस होती है कुछ, उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है सर। तो बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे आगे, या इससे भी कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है? कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे थोड़े थोड़े से, वो मैं शेयर करूंगा आपसे, सही। वो दिखाने जरूरी है, तो ओके। इसलिए आप दोबारा ज्वाइन कर लें। ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि वे ऑफ सॉल्विंग क्या होना चाहिए।
यहाँ तक हमने कर लिया था। मेरी आवाज क्लियर है आप सब लोगों को? यस सर, क्लियर है। अच्छा जी। हमने इक्वेशन लिख ली थी जिस तरह हमने पहले सीखी है। हमने उसके नीचे मोल्स लिख लिए थे, कितने कितने मोल्स हैं। ये हमें पता लग गया कि टू कैसे आया, कि टू जहाँ पे नीचे लिखा होता है हम वहां पे टू आगे दो होते हैं, वो दो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये दो आ गया। क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया था कि जो सोडियम है ना वो 1000 mg है। और ये जो पूरा फार्मूला है इसके ग्रामेज रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी ग्राम्स, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि किसका दिया हुआ मैथ्स और किसका रिक्वायर्ड है। फिर हम यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे मैथ्स दिया होता तो शायद हम इस तरफ से स्टार्ट कर लेते। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव weight, we have mass, we need to convert it into moles. When we convert it into mole with simple formula, applying simple formula, moles is equal to mass by molecular weight, this will give us this 0.043 as moles. Now, this much moles are in 1 gram of sodium. We are still looking for 1 mole. This calculation is for 1 mole. We have not done this for this two. So you can think of this that there is a line of this. This is 1 unit. This too has not no effect here in this step. Now that we have found out how many moles are there in 1 gram, now in the next step this thing comes play that we need to go from here to here, from this part of the equation to this part. Now this is one part and this is second part of the equation. We will do a cross multiplication that says that if 1 mole coming from here, 1 mole is giving us 2 moles, then how much there will be if there are 0.043 moles? Simple cross multiplication, or what we can do, we can divide this value by 2. This will give us the value for this side. So either cross multiplication, either make a simple division divided by 2. This will give you how much moles of this formula. Then in the third step, we will be converting moles back to mass. So this is mass, or we can write gram here. So mass is equal to, we know from the formula, number of moles multiplied by molecular weight. So 0.025 coming from here, 0.025 multiplied by molecular weight, this is our answer. So हुआ क्या है, हमने एक साइड फार्मूला से दूसरी साइड के ऊपर गए हैं मोल्स की मदद से। ये है ये है एक्चुअल सोल मोल्स वाले क्वेश्चन की। अब ये आप ऐसा करें, आप ये चीज अपने रजिस्टर के ऊपर लिखेंगे। आप ये इक्वेशन भी लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ें, इक्वेशन लिखें, आपके सामने लिखिए इक्वेशन। ये सॉल्व भी आपके सामने हुआ, कहीं पे फंसते हैं आप इसमें से देख सकते हैं। आप इसको 1 मिनट लें और सॉल्व करें। यस सर। सर, इसको उसी तरह सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन है ना, मतलब जब कि ये मैं कर चुकी हूँ, सॉल्व आंसर इसका निकाल ठीक है, चुकी हूँ। बाकियों दोबारा को बाकियों को करने दें। हम सारे कर लें सब, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपके ये लिखने से क्या होगा, आपके लिखने से बाजू का ना सिर्फ और सिर्फ देखने से हम चीजें स्किप कर देते हैं। जब आप लिखेंगे ना रजिस्टर पे, हो सकता है आप देखेंगे ये वैल्यू कहाँ से आई है, फिर आपको अच्छा पता लगेगा। तो आप 1 मिनट लें, तसल्ली से सारे इसको लिखें और इसी फ्लो के साथ लिखने की कोशिश करें। एक दफा समझ लें, देर कैलकुलेशन को करने के ना मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, क्योंकि ये तरीका है, कोई और तरीका भी है, किताब में किसी और तरीके से भी लिखा हो सकता है। आपको समझ जब आ गई ना हो क्या रहा है, तो फिर आप अपने शॉर्टकट्स खुद ही बना लेंगे। ये मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करूँ, मैं इसको शॉर्ट करूँ, 2 कैलकुलेशन मैंने करनी है, ये सॉल्व हो जाना है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है। जिसका हो जाए तो वो हैंड रेस कर दे। गुड, सारे करें। माशाल्लाह, 5 6, गुड।
जो तो मेरे सामने गलती करेगा ना, वो मुझसे पूछ लेगा। उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं होता सारा दिन। तो मे बी मैं आपके आंसर उस वक्त नहीं कर पाऊँ। अभी आप मेरे जिस जो जो मैं कहता हूँ सिंपली वो कर लेंगे ना, तो इट विल बी इनफ कि आप फिर अगले क्वेश्चन खुद भी डील कर लेंगे आप वाले। ओके, आई थिंक दैट्स इट, इतने लोगों ने ही इसको करना था। अब हम, अब ये समझ आ गया, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है किसी का तो खुल के पूछ लें। यही टाइम है, इससे आगे सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रैक्टिस है। नो सर। सर ये 23 तो याद ही रखना पड़ेगा, ये तो नहीं गिवन होगा। मैं बताता हूँ, ये जो 23 आप बात करें ना, यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको गिवन होगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन मैं आपको अभी बुक में से बता दूंगा, ये 5-8 एलिमेंट्स हैं, इनका आप याद कर लें। ये आपको प्रैक्टिस करते भी याद हो जाएगा। वैसे एथिकली भी और होता भी ऐसे ही है कि वो एग्जाम में जो चीज़ चाहिए होती है ना, इस तरह की वैल्यू, वो लिखी होती है। इवन आपको ये वैलेंसी भी वहीं पे लिखी मिल जाएगी। अगर ये मैग्नीशियम है ना, तो +2 आपको वहीं लिखा मिल जाएगा। उस चीज़ का टेस्ट नहीं कर रही है। ये आपका टेस्ट कर रहे हैं कि आप कैलकुलेशन कैसी करते हैं, आपको आपकी कैलकुलेशन की सेंस कैसी है। इस तरह की कोई चीज़ भी वो इस तरह नहीं कहते कि याद करके हो। ये हमारे यहाँ होता है स्कूल कॉलेजों में, ब्रूटल चीज़ें याद करवाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ जो याद हो ही नहीं, सेंस ही नहीं बनती उसको याद करने की। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। और अब आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट है, इससे आगे जाने से पहले अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसको नहीं देखना, सेम क्वेश्चन को बगैर देखे सॉल्व करें एक दफा। और जो कर ले वो हैंड रेस कर दे। देखना नहीं, चीटिंग नहीं करनी। कहीं पे आप अटकेंगे, आपने मुझे पूछ लेना है। गुड, माशाल्लाह, करें करें सारे करें, कोई टेंशन नहीं लेनी टाइम की आप लोगों ने। क्योंकि ये अगर यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो फिर आगे भी नहीं आएगा। माशाल्लाह। 6+ पीपल। अच्छा, इसमें अब यहाँ तक सभी को क्लियर है ये बात कि हम सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, कैसे हमने कंपेयर करना होता है एक तरफ को दूसरी तरफ से, इन सेंस ऑफ मोल्स। अब मैं थोड़ी सी आपको सेंस भी बता देता हूँ कि ये करते क्यों है, मोल्स के अंदर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। सिंपली ग्राम से तो हम जा नहीं सकते, जा भी सकते होंगे, कोई तरीका होगा, लेकिन इतना सिंपल नहीं है कि हम कहें कि 16 ग्राम में 2 मोल बना रहा है तो वो उधर 8 ग्राम 1 मोल बना देगा। इस तरह से कन्वर्जन नहीं कर सकते, तो हमें एक दफा डीप उतरना पड़ता है फार्मूला के अंदर, मोल्स के फार्मूला के अंदर, मींस कन्वर्टिंग मोल्स टू ग्रामेज। फिर दोबारा हमें उसी सीक्वेंस से वापस आना पड़ता है। तो हम एक दफा पहले भी ऐसे क्वेश्चन जी सॉल्व सर। कर चुके हैं जिसमें हमें डीप डीप जाना पड़ता है। मैंने उसको वी बताया था आपको, वी, कि एक दफा डीप जाना पड़ता है, फिर उसी सीक्वेंस में रिवर्स में वापस आना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है हमारे इसके पास। लिए सर एक क्वेश्चन था। जी जी।
सर आपने शुरू में बोला ये मोल्स है जो Na के साथ टू लगा हुआ है ना, ये मोल है। हम्म। ठीक है, फिर हम यहाँ पे मोल निकाल दिए हैं 0.043, मतलब नहीं वन नहीं, ग्राम को हमने ये डिवाइड किया टू और ये 23 मोल्स में। नहीं है। इस ये जो मोल में दो और उस लिखा मोल हुआ में है, क्या फर्क है? ये जो दो लिखा हुआ है इसकी बात करें ना हम। जी। ये जो टू लिखा हुआ है Na के साथ टू है, ये नो सर, मोल्स। आगे इक्वेशन में जो है आपने टू Na लिखा ना इक्वेशन के यहाँ पे आगे, मैंने ये सॉल्व किया टू है। लिखा हुआ है, जी मतलब जी। मोल क्या है, टू है। हाँ जी। फिर हम आगे एन निकालने दोबारा, वो भी मोल ही है ना। उस मोल में और उस मोल में क्या फर्क है? इसमें फर्क है, ये जो ये वाला पार्ट है ना क्वेश्चन का, ये वाला जो है, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके नीचे के साथ अभी कोई लिंक नहीं है इस स्टेप के अंदर। ये वो हमने, होल के लिए 2 मोल है और ये 1 ग्राम के लिए मोल है, मैं ये क्वेश्चन शायद। क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमने ये लिखे हैं ना मोल्स, जो ये लिखे हैं हमने मोल्स निकाले हैं, ये हमने इस इक्वेशन के साथ ही लिख देने हैं। आपने इसका अभी इसके साथ कोई लिंक नहीं है। आपने पहले इसको फाइंड आउट करना फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम या कोई भी एलिमेंट होगा। यहाँ पे 4 1 के हम लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद हम जब कन्वर्जन में ले जाएंगे तो हम इसको ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जन के अंदर दो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। इस स्टेप के ऊपर आपने इसको नहीं करना, इस स्टेप के ऊपर 4 1 मोल लेके चलना। ये बात मैंने पहले भी बताई है। तो बहुत अच्छा हुआ, जो जो चीज़ आपकी कंफ्यूजन आपको करती है वो आप अभी पूछ लें। ये जो टू है ना, ये वाला जो टू लिखा हुआ था, ये मोल्स नहीं है। ये दो सोडियम के एटम्स को इंडिकेट करता। तो हमें पता लगा दो सोडियम के एटम निकलेंगे तो ये दो मोल्स बनेंगे। स्टार्टिंग द कैलकुलेशन, ये आपने यहाँ पे एक की ही कैलकुलेशन करनी है। सिंपली याद कर याद कर लें इसको। सर लेकिन एंड में ये टू की वैल्यू निकली है, 2 मोल बराबर है 0.043, फिर हमने उसको डिवाइड किया टू से तो वो 1 मोल के निकला है। ये 1 मोल की तो वैल्यू नहीं देखे निकली ना, देखे जीरो देखे पॉइंट मेरी जीरो बात फोर मेरी थ्री बात, ये ये तो दो टू चीज़ों, मोल की वैल्यू निकली ना। दो चीज़ों को सेपरेट लेके चलेंगे आप। ये इसको आप इसके साथ लिंक कर लें और इसको आप इसके साथ लिंक कर लें। इसको अगर मैथमेटिकली डिटेल में जाएंगे ना, तो जब आप ये 8 10 क्वेश्चन कर लेंगे ना, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये जो हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, ये जो हम पीछे कर रहे थे क्वेश्चंस के अंदर, जो हमने स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन के अंदर प्रैक्टिस किया ना इसकी, उसके अंदर हमने कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं देखे। ये नहीं देखे ना, जो नहीं, हमने, नंबर ऑफ मोल्स ही तो बोला आपने इसको। सबसे स्टार्ट में ये देखिए 1 मोल लिखा हुआ है, ये देखिए ये जो पहले फर्स्ट लाइन है इसकी, जब हमने यहाँ पे इसको 1 प्रैक्टिस मोल किया है, 2 मोल लिखते हैं। मेरी बात सुन, जब हमने यहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया, कहाँ पे किया, जो 3 सवाल थे स्क्रीन के ऊपर, ये यहाँ पे, जब हम इसको सिंपल कैलकुलेट कर रहे थे, उसके अंदर हमने यहाँ पे जो नीचे मैंने लिखा ना फार्मूले के नीचे 1 2 3, इसको नहीं हम डील कर रहे थे। हम सिंपल यहीं से निकाल के फार्मूले के अंदर डाल के इस इन वैल्यूज को आंसर ले लेते थे। सो सेम थिंग इज हैपनिंग इन फर्स्ट स्टेप। उसके अंदर आपको जो हम फार्मूला के नीचे लिख रहे हैं ना 1 2 2, उसको देखने की जरूरत नहीं है। ये गिनती के रिएक्शंस है, हम या याद कर सर लेते हैं इसको बस ये यहाँ बोल पे ना। सकते हैं हम, ये तो इतने आपको ग्राम में इतने मोल्स याद है। ही करना पड़ेगा, ये आपको हम याद ये ही बोल करना सकते हैं हम पड़ेगा। इतने ग्राम में, नहीं कुछ हम ये बोल रिएक्शन सकते हैं याद कि ये करनी। हमारा 1000 हमारा गिवन है, तो हमें 1000 में बताना है कि कितने मोल्स मौजूद होंगे। हम 1000 के ये अकॉर्डिंग होगा करा है हमने सर। इसको, मोल को ना, वो तो रिएक्शन का हाँ था, अब हमें 1000, जैसे गिवन 1000 के mg है अकॉर्डिंग ना, निकालना है। तो 1000 mg में कितने मोल्स हैं? नॉर्मली वो टू मोल्स तो है, लेकिन वो तो इक्वेशन के लिहाज से वो हमें इक्वेशन के निकालना है लिहाज मेरे से ख्याल से है। हाँ जी, 1000 अब mg आपने के बिल्कुल सही कैच किया ऊपर इसको। है। मैं रिट्रेट कर देता ठीक हूँ। है, ये लेकिन जो ये हमें पार्ट है ना, 1000 mg के लिहाज से बताना है कितने मोल्स मौजूद है। हमने ना इस इक्वेशन को आप अभी साइड पे कर दें। ये जो आ रही है ना लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आपने इस ग्राम को पहले सबसे कैलकुलेट किया है कि 1 ग्राम के जी अंदर सोडियम के कितने मोल्स होते हैं। इस टू के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। ये टू विल सही है, कम इन एक्शन लेटर। सही ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये टू वाली बात सही। यहीं से शुरू हो रही है, आगे चल के शुरू हो रही है कि ये 1 मोल ऑफ दिस इज गिविंग अस 2,
तो रिवर्स में जाके हमें पता चलेगा। अब ये कैसे आपको, एक तो आप याद कर ले यहीं पे खड़े होकर, फिर यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन करनी है ये 1 मोल के हिसाब से ही करनी है। आपने बस देखना है नंबर ऑफ मोल्स, इस 2 को यहाँ पे 2 हो यहाँ पे 1 हो, इट डजेंट मैटर एट दिस स्टेप। आप इसे याद भी कर लें और आगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा पता भी चल जाएगा कि यहाँ हम क्यों नहीं इसको इंटरेक्ट करवा रहे थे। अभी के लिए इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? नो सर। चले, इस कुछ चीजें होती हैं जो आप अभी याद कर लें, आगे चल के जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ओके अब सर, खुश। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लिया करें, हो सकता है कोई मैं कोई पार्ट मिस कर रहा हूँ या कोई बात इस तरह होगी ना कि इसको बस याद कर लें, तो मैं आपको बता दूंगा कि बस याद कर लें इसको। अच्छा जी, अब यहाँ से हम आगे मूव करेंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन या एंड ऑफ द क्वेश्चन कुछ डिफरेंट चीज सॉल्व करने के लिए लगी होगी साथ में। वो क्या होगी? इट विल बी रिलेटेड टू समथिंग फ्रॉम चैप्टर 1 to 3। कैन बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैन बी अ कन्वर्जन फ्रॉम ppm टू 100 ml और वट एवर, वील सी। ये जो हमने ये तरीका याद कर लिया ना सॉल्व करने का, ये अब आगे हर क्वेश्चन में लगेगा। अब एक दफा ये आपने अपने पेन से सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आप सिर्फ इसको समझेंगे, अब लिखें नहीं, सिर्फ अपनी आईज ओपन रखें और बिल्कुल ट्रैक करें कि मैं किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि समटाइम्स हम सुनते वक्त उतनी अटेंटिवली नहीं सुन रहे होते। बट प्लीज आप इसको सुने और जो टेक्निकल पार्ट होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आप कर चुके हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आता है, a formulation of NaF has a strength of 0.5% weight by volume NaF. If a dropper delivers 0.8 ml of solution per 40 drops, how many drops will contain 2 mg of fluoride? सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कौन से दो फार्मूले हैं। एक ये NaF है और इसके अंदर फ्लोराइड की बात हो रही है। सबसे पहले आपने यही आइडेंटिफाई कर लेना हर एक क्वेश्चन के अंदर। चलें जी, अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई एफ की। ठीक, हमें सब क्लियरली पता चल रहा है इट विल कंटेन 2 mg ऑफ फ्लोराइड। और ये जो बाकी सारी चीजें हैं ना, दिस विल बी रिलेटेड टू दिस NaF। अब पढ़ेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें, एक तो सेंस बना लें चीज की इस तरह के क्वेश्चंस में कि कोई एक एलिमेंट का या तो दिया होगा या उसका पूछा होगा कि ये कितने mg है। हमने यहाँ पे अभी ये सारी जो चीजें ना इसको देखते हैं कि ये क्या लिखा है इन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिखी अपनी NaF, Na और F। हमें ये Na लिखने की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, आपने ये लिखा 1, ये मोल्स है ना। अच्छा, हम यहाँ पे किस में रहेंगे, मिली में रहेंगे या आप सजेस्ट करें हम यहाँ पे मिली में रहें या ग्राम लेवल में रहें? सर मिली में कर लेते हैं। मिली में कर लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ना मिली। मिली के अंदर ही चल रहा है, तो दिया भी ये 2 मिलीग्राम में हुआ है और ये बाकी भी कुछ मिली में चीजें चल रही हैं तो हम मिली में कर लेते हैं। अच्छा, मिली मोल्स हमने लिख लिया 1 1 1। अब ये हम यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करेंगे क्योंकि ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमसे इन्होंने पूछे हुए हैं या वट एवर द कैलकुलेशन इज, ये गिवन हमारे पास 2 mg है इसका फ्लोराइड का। यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करें इसके, गिलें मिली मोल्स, डायरेक्टली मिली मोल्स का फार्मूला लगा दें क्योंकि हमने मिली के अंदर रहना है। तो हमें अब 2 mg को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पे गुड अटेंशन टू क्वेश्चन, गुड अटेंशन टू यूनिट्स। 2 mg आ गया डिवाइडेड बाई 19, ये इसका लिखा हुआ है एटॉमिक वेट ऑफ फ्लोराइड 19। तो 19 आ गया आंसर हमारे पास, ये आ गया मिली, ये मिली मोल्स के अंदर है जस्ट लाइक दिस। अच्छा, अब हम इसकी आएंगे कन्वर्जन के अंदर, जो हमने अब कंपेयर करना था एक दूसरे के, हमें पता लगता है कि 1 on 1 ही है। ठीक है, 1 on 1 ही है। तो सिंपल वापस आए, इसको कन्वर्ट करें वापस मैथ्स के अंदर। तो 0.105 मल्टीप्लाई बाई इट्स एटॉमिक वेट, NaF एटॉमिक वेट इज सॉरी मॉलिक्यूलर वेट इज 42। दिस विल कम एज आंसर। अब आप लोगों ने, जब मैंने आपको कहा था ना एपेक की प्रैक्टिस करें, तो देखा होगा समटाइम वी नीड टू गो आफ्टर दी फाइनल कंसेंट्रेशन फर्स्ट, और फिर हम इनिशियल जो भी हमें पूछा होता है ना कि इसके कितने ml यूज होने हैं या कितने mg यूज होने हैं। किसी ने नोटिस किया इस बात को कि समटाइम्स इन इक्वेशन हम फाइनल जो होता है ना सोल्यूशन, उसकी कंसेंट्रेशन मालूम कर लेते हैं पहले और फिर इनिशियल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर नहीं किया तो आप ये नोटिस करेंगे भी आगे चल के। तो सेम लाइक इसी तरह हुआ कि हमने 2 mg ऑफ फ्लोराइड के पहले मालूम कर लिए मिलीमोल्स, अब हम वापस आ गए हैं ये कन्वर्जन करते करते, तो हमें पता लगा इसका कितना मैथ हमें चाहिए। एक्चुअली हो क्या यहाँ पे रहा है, ये जो आपको कर रहे हैं ना सारा कुछ, परसेंटेज है
फिर 0.8 के अंदर 40 ड्रॉप्स हैं, कितने ड्रॉप्स लगेंगे इसके लिए, 2 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड के लिए। अब हमने यहाँ पे आके इसका मैथ्स निकाल लिया। मैथ्स निकालने के बाद हम ये क्वेश्चन को अब यहाँ से सॉल्व करते हैं मजीद, और हमें पता लगता है कि 0.5% का सोल्यूशन है। इसका मतलब होता है 0.5 ग्राम इन 100 ml। अब इन्होंने फर्दर कहा कि इफ अ ड्रॉपर कंटेन डिलीवर्स, अच्छा जी, 0.8 ml के अंदर 40 ड्रॉप्स हैं। तो अभी हमसे कंसंट्रेशन पूछेंगे कि इसको अब आप कन्वर्ट करें नंबर ऑफ ड्रॉप्स के अंदर। ये आप तसल्ली से भी पढ़ेंगे ना तो आपको यही पता चलेगा। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगी। हमें चाहिए ये 0.41, ये जो हमें मैथ्स निकला है, इन हाउ मेनी ड्रॉप्स। वो तो हम इसको पहले कन्वर्ट, इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको सेंस वहां से अब पता होनी चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। कैसे करेंगे देख लेते हैं क्विकली। 0.5 ग्राम इन 100 ml, तो 0.8 ml के अंदर कितने होंगे, क्योंकि 0.8 ml तक आना पड़ेगा हमें भी। तो ये हमारे पास निकलेगी कंसंट्रेशन इसकी 0.004 ग्राम्स। इसको कन्वर्ट कर लें mgs के अंदर, क्योंकि ये जो परसेंटेज होती है वो होती है ग्राम्स के अंदर, लेकिन हमें आना है मिली लेवल के ऊपर। कन्वर्ट कर लें 0.004 ग्राम को 4 mg बन गया। अब ये क्या कहते थे, 8 ml है, 8 ml में से 40 ड्रॉप्स बनते हैं, 8 ml ऑफ सोल्यूशन पर 40 ड्रॉप्स। तो इसको अब हम 4 mg को उठा के ले आते हैं कि जी 40 ड्रॉप्स के अंदर 4 mg हैं, 40 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 8 ml ना। तो ये इज इक्वल टू ये, तो ये कितने बनेंगे, 40 ड्रॉप्स के अंदर 4 mg है, तो कितने ड्रॉप्स के अंदर 4.4 mg होगा यहाँ से जो हमने निकाला है। अब ये जो सारी सेंस है ना, ये मैंने आपको समझाऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये आपको उस वक्त से सेंस होनी चाहिए। आप ये जब चैप्टर 1 2 3 की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसी किस्म की सारी क्वेरीज थी वहाँ पे। तो ये हमारा आ जाके आंसर निकल आएगा जी 44 ड्रॉप्स। हमारा जो एक्चुअल ये वाला टॉपिक है उसका पार्ट उतना ही है जितना हमने सीखा है। ये जो बाकी अटैच हुआ है ना, ये वही चीज़ें हैं सारी। और इसको अब अगर अभी कोई नहीं कर सकता तो फिर आप मे बी यू आर फॉलिंग बिहाइंड। तो आपको वो जो क्वेश्चंस करके इसकी सेंस बननी चाहिए थी। फॉर्मुलेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 0.5%। अच्छा, 0.8 के अंदर 40 ड्रॉप्स हैं, तो जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको हमने पर ड्रॉप में कैसे लेके आना है। ये ये बात क्लियर है सबको। यस सर, क्लियर है। यस सर। फिर भी प्रैक्टिस करेंगे ना। आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन ही आप सॉल्व करेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग देख के स्टॉप करें, इसको सॉल्व करें। अगर बस मसला होता तो आप इसमें से देख सकते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या कहता है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ अ सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग 1 मिलीमोल सोडियम पर 5 ml। 100 ml बनाना है, 1 मिलीमोल पर 5 ml है। सिंपल, ये देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएं इसके ऊपर एक, 1 मिलीमोल के 5 ml में है तो कितने होंगे 100 ml में, इसको सॉल्व कर लें। तो ये हमें पता लगेगा कि 20 मिलीमोल है टोटल 100 ml के अंदर। यहीं पे सॉल्व हो गया। कुछ चीज़ें पहले सॉल्व करने वाली होंगी, कुछ बाद में। अब सेंस कैसे बनेगी, प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब आप किसी रॉन्ग तरफ से सिरा पकड़ के तो वो करना शुरू कर दे ना सॉल्व, तो वो एक जगह पे आके अटक जाता है बंदा। फिर वो दोबारा से आता है कि नहीं मैं दूसरी अप्रोच से आता हूँ। तो ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ये बहुत कुछ सिखाती है। इवन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप कैप्स एग्जाम में भी एक सीक्वेंस से शुरू करें, लेकिन आपको पता लगे नहीं मुझे दूसरे सीक्वेंस से आना चाहिए था। इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स ओके। ये सभी के साथ होता है। तो फिर भी एक सेंस डिवेलप हो जाती है कि ये काम पहले करने वाला है या पहले बाद में करने वाला है, कुछ जो छोटी सी कैलकुलेशन अटैच है। तो ये मुझे लगा इसको पहले करना चाहिए हमें। तो मुझे पता लग गया कि 100 ml के अंदर 20 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम हो गया। इसको सॉल्व किया मैंने। अच्छा, अब तो सिंपल होगी बात। कैसे सिंपल हो गई, हमें पता लग गया, हमने इक्वेशन लिखी NaNaCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl, ये आ गया। इसको जो ये इक्वेशन थी, हमने इसको सॉल्व करके 100 ml के हिसाब से ही लिख लिया, 20 मिलीमोल सोडियम, ये हमने लिख लिया 1 1। अब तो नीचे आके हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से इस इक्वेशन से इस इक्वेशन के अंदर मूव करना है इन मोल और मिलीमोल वट एवर। तो ये ऑलरेडी हमारे पास मिलीमोल में वैल्यू है। अब आके आपने देखा, अच्छा ये तो अब करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी 1 on 1 है। अब इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ ले जाए, मैथ निकालें इसका। 20 × इसका मॉलिक्यूलर वेट 58.5। देखें उन्होंने दिया ही नहीं हुआ सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट, वो एटॉमिक वेट, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है आपको। अगर दिया भी होता ना तो शायद कुछ लोग कर देते यहाँ पे इसको सॉल्व।
फिर भी आंसर वही रहता है, आंसर को हाँ पहले ही दिया हुआ आंसर, तो क्या उसका आंसर निकालना था। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एमजी के अंदर दिया एमजी में सेलेक्ट कर दें, ग्राम में दिया तो ग्राम में सेलेक्ट कर दें, सिंपल। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। परफेक्ट जी। प्रैक्टिस करेंगे, रिकॉर्डिंग देख के मजीद बेहतर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस सोडियम आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये सेम है उसी तरह का, और इसके अंदर भी हमने पहले ही ये चेक कर लिया कि जो 1 मिली मोल पर 5 ml था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, और बाकी से सारी वैसे कर ली। इसके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 है और 1 है। इसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लें, या हम इसको डिवाइड कर दें 20 को 2 से, 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर यही आ जाएगा। टू अंडरस्टैंड आप इस पूरे तरीके को फॉलो करके चलें, आगे थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएंगे तो फिर आप इसको डायरेक्टली इधर से इधर लेके जा सकते हैं कि ये 2 to 1 है, तो आप इसको डिवाइड करें 2 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन भी वेरी सिंपल था। आगे चलते हैं। अब ये पीपीएम का क्वेश्चन आ गया है। पीपीएम पार्ट पर मिलियन होता है। इसका मैंने आपको एक पहले लेक्चर में बताया होगा कि इसको ना आपने फौरी तौर पे 100 ml के अंदर क्यों लेके आना है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बात पर रिक्वायर्ड होगा, या वो परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम में ले जाएंगे, या आपको समहाउ कोई 100 के ऊपर लाना आना चाहिए आपको। तो डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया वो उससे आप आ सकते हैं कि 9 ppm है, दैट मीन्स 0.9 mg इन 100 ml। किसी ने नहीं देखा तो वो फिर पहली वीडियो के अंदर जाकर देखें। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड भी ये था, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ 100, यहाँ पे एल है, मिसिंग है ये बुक के अंदर, ऑफ दिस CaF2 solution which contains, ये देखें एफ की वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, फ्लोराइड की वैल्यू दी हुई है 9 ppm। फ्लोराइड की वैल्यू हमें दी हुई है 9 ppm, तो हमने ये फ्लोराइड की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है फ्लोराइड की। तो यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे तो आंसर निकल आएगा। क्या इसमें एडिशनल स्टेप क्या है, इन्होंने आप पीपीएम दे दिया, आपको तो आता है पहले ही पीपीएम करना, तो कोई मसला भी नहीं हुआ आपको, आपने सेम वैसे ही सारा सॉल्व कर लिया। 0.9 mg, ये 0, ये रहा 0.9 mg, बाकी सारा प्रोसेस वही है। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को भी समझ नहीं आई यानी कि नो सर, इजी है। इजी है? ओके ओके। तो सारा प्रोसेस हमारा वही है। अब इससे आगे चलते हैं, फौरी तौर के ऊपर हमारा टाइम काफी कंज्यूम हो गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, सेम 0.05 मोल्स पर मिनट कर दिए इन्होंने। अब ये क्या चाह रहे हैं, इस पूरे क्वेश्चन का समरी आपको बता देता हूँ, कि ये चाह रहे हैं कि 12 बार देना है हमने, और पर मिनट हमने 0.05 मोल्स देने हैं। बाकी क्वेश्चन सारा का सारा सेम है, तो हम निकाले थे 0.05 मोल्स इन 1 मिनट, और 12 आर कन्वर्टेड टू मिनट्स इज 720 मिनट्स। तो हमें पता लग गया कि टोटल इन 12 आर एक्स की वैल्यू इतनी होगी, एक्स मीन्स के की वैल्यू, के यहाँ पे मेंशन किया हुआ इन्होंने, के पर मिनट। तो इन टोटल आपकी चीजें नजरें दो पे जानी चाहिए, एक तो टोटल पूरा फार्मूला क्या है, और बात किसकी कर रहे हैं। अब ये सीएल को भी यहाँ लिखना देखें कोई फायदेमंद नहीं है, तो सेव योर टाइम, सिर्फ उसी चीज के ऊपर है जिसकी हमें जरूरत है। अब देखो केमिस्ट्री की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। अच्छा, हमने ये इस कन्वर्ट कर लिया जब इसको, कि 12 आर के अंदर कितने मिली मोल चाहिए, क्योंकि हमें दिया ही इन्होंने मिली मोल के अंदर हुआ पहले ही, तो भी हमें यहाँ पे अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम स्ट्रेट गए अपने तरीके से, हमने इसको सॉल्व कर लिया। बुक के अंदर किसी और तरीके से भी किया हो सकता है, वो समझ आ जाए आपको, वेल एंड गुड, नहीं तो इस तरीके से कर ले। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे परसेंटेज डाल दी इन्होंने, परसेंटेज वेट में वॉल्यूम ऐड कर दिया, यू हैव। अब देखें क्या हुआ, अब इस तरफ को दे दिया इन्होंने। अब ये वेट जो है, जो भी मैथ्स दिया है उन्होंने, वेट देते हैं या मोल मिली मोल देते हैं, वो इस तरफ के दे दिए इन्होंने, तो हमें फिर भी कोई मसला नहीं। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ क्लोरीन। हाउ मेनी में अब क्लोरीन आ गया है, ये वाली पार्ट आ गया अब इसके अंदर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी, तो कोई नहीं, हम इधर से इधर को चल पड़ते हैं। तो सेम वही सेम फार्मूला लगाते लगाते हम इधर से इधर को आ जाते हैं। और ये जो परसेंटेज थी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 60 ml, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो 4 ग्राम इन 100 ग्राम, हाउ मच इन 60 ml, एक्स की वैल्यू आ गई। वो हमने लेके यहाँ पे चल लिया, और फिर जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स आपने चेक कर लेने कि आपने किसके अंदर रहना है। यहाँ वैल्यू हमारे पास ग्राम में आई है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है 24 mg के अंदर, बेस्ड ऑन और क्वेश्चन। गलत भी करेंगे तो कोई नहीं सर आप। वो जी जी। सर यार क्लोरीन के नीचे सर 2 आना चाहिए वो ना। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, ये तो वो सॉरी, ये टू 2 आना क्यों चाहिए, नहीं? 2 आना चाहिए, सॉरी गलती होगी, ये यहाँ पे 2 ही लिखा हो। अच्छा,
ह्यूमन एरर है यार, ये मैंने बैठ के लिखे हैं, कुछ आधे ऑफिस में बैठ के और कुछ आधे घर नहीं बैठ के। फिर हमें कंक्लूजन ये अच्छा, कंफ्यूजन कंक्लूजन हो हो रही गई। थी कि ऐसा आएगा कि बहुत कंफ्यूजन वैसा अच्छा हो हो गई गया। और यू शुड बी प्राउड ऑफ अस कि हमने लोकेट कर लिया, आपने इतना अच्छा हाँ, मुझे पढ़ाया। बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने जो है ना इसको लोकेट कर लिया। अच्छा, अब ये भी क्लियर हो गया सबको। ये इस तरह की छोटी छोटी ना क्वेश्चंस आएंगे। अब अच्छा। हम आगे चलते हैं और देखते हैं मेन पार्ट को। सर ऐसा नहीं हो सकता आफ्टर जब सारी क्लासेस हो जाएं तो आप प्रैक्टिस सेशन भी रखें जिसमें खाली प्रैक्टिस कराएं हमारी डिफरेंट डिफरेंट अपने क्वेश्चंस देखें। हाँ जी, मैं बिल्कुल करवा दूंगा, मिक्सचर में थैंक यू। करवा दूंगा। अच्छा, अब ये एक आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इसमें क्या होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, बी प्रिपेयर्ड। इसके अंदर आपको एक पूरा फार्मूला ये वाला, इसके अंदर आपको एक पूरा फार्मूला ये वाला अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये वाला पूरा अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप क्वेश्चन समझ के ही सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ सोडियम आइंस, ये दरअसल सोडियम आइन चाहते हैं इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, एंड पे आप प्लस कर देंगे दोनों को। तो आपने अब इसको खुद सॉल्व करना है। मिलीमोल्स में आपने ठीक है। आंसर निकालना है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ सोडियम आइंस। तो ये एक फार्मूले को अलग से सॉल्व करें, इस नीचे वाले फार्मूले को अलग से सॉल्व करें, और एंड के ऊपर दोनों को कंबाइन कर दें कि हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ दिस, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ दिस। टाइम शॉर्ट है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या हो रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, ये भी कुछ इसी तरह की इन्होंने हरकत किया यहाँ पे कि हमने ये सब सेंस, मुनाश में है ना। ये सब मुनाश में। ये ठीक है। आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी टू स्टेप डीप, कि अच्छा ये क्या हुआ है। किसी को नहीं समझ आया तो ये मेरी कैलकुलेशन से देख लीजिएगा कि किस तरह से किया। बुक के अंदर थोड़ी डिफरेंट है, हमारा वाला तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको जो भी समझ आए, मेरा तरीका इस क्वेश्चन का देखना हो तो आपने इसमें से कर लेना, आके देख लेना है, और प्रैक्टिस खुद करनी है। मैं आगे मूव करूंगा अभी इसमें से। अब एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं एमईक्यू का भी, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम कर रहे थे मोल्स के ऊपर प्रैक्टिस। सेम वे, एवरीथिंग सेम रहेगी। जो फार्मूले के नीचे लिखता हूँ ना मैं, 1 1 2, वो चेंज होगी एमईक्यू के अंदर। तो हमने ये पढ़ा कि मिली मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी इज इक्वल टू एमईक्यू होता है। बाकी अगर वैलेंसी 1 है तो वो इक्वल टू मिली मोल ही होता है, मोल या मिली मोल ही होता है। तो इसको देखते हैं हम क्वेश्चन को, एमईक्यू के अंदर क्या होगा। जब आपको मोल आ गए ना तो आपको एमईक्यू भी आ गया, आपको ओस्मोल भी आ गए। यही सब कुछ होने वाला है। मिली ओस्मोल में थोड़ा सा चेंज होता है कॉन्सेप्ट, के हमें दोनों को देखना पड़ता है। यानी कि अगर ये सी ए सी एल है ना, तो हम सी ए को भी देखेंगे, सी एल भी देखेंगे, क्योंकि ओस्मोलैरिटी क्या होती है, ओस्मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। तो इसलिए हम वो दोनों को देखते हैं, वो हम आज नहीं बाद में देखेंगे। अभी हम एम को ही देखेंगे सिर्फ। सारा कुछ मोल्स वाला ही रहेगा इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन चेंज होगी। कैसे चेंज हुई, ये हमें पता चला कि एक ये है और एक कैल्शियम की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक ये और एक कैल्शियम। अब मोल होते तो यहाँ पे 1 होता, राइट। अब यहाँ पे एम के अंदर 2 है, क्योंकि ये मिली इक्विवेलेंट है। तो कैल्शियम की ये जो वैलेंसी है, इसकी वजह से यहाँ पे अब 2 आएगा। बाकी सारा तरीका सेम रहेगा। इन्होंने आपको बताया कि अच्छा जी 5 MEQ पर 5 ml है, तो आपने इसको भी देख लिया कि अच्छा MEQ पर 5 ml है और 200 ml टोटल है। ये आपको समझ आ जाएगी। ये वाला पार्ट जो है करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको पता लग गया। एक्स इज इक्वल 200 MEQ है, इसको आपने यहाँ पे रखा। कैल्शियम का था ये, कि कैल्शियम पर 5 ml था, तो कैल्शियम हमें वैल्यू गिवन है, सेम उसी तरह से ले जाएं। अब यहाँ पे मिली मोल लिखें, मिली इक्विवेलेंट लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर सेम आने वाला है। अब ये 2 का मसला था सिर्फ, ये हमने लिख लिया MEQ के हिसाब से। अब ये आप यहाँ से सेम वैसे ही करते आएंगे सारी चीज़ें। आपने ये भी कर लिया कि 2 ये आ गया, 1 यहाँ से आ गया, कि 1 मोल जो है ये 2 देता है, तो कितने देगा ये, 200 MEQ। वही आप लेके वैल्यू यहाँ पे आपने मैथ्स का फार्मूला लगाया और आंसर आ गया। एमजी में लिखा है एमजी में लिख दें, मास में लिखा है ग्राम में लिखा है ग्राम में लिख दें। MEQ के सारे क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस करने हैं, अब वो नहीं मैं करवाऊंगा, वो सेम वैसे ही होंगे जैसे मोल्स के हुए हैं। अब ये सारा आपको बताने का मकसद ये था कि इसका इसका डर होता है असल इस पार्ट का। बाकी ये तो सारा सेम रहता है प्रोसेस। किसी का भी दिया, किसी साइड का भी दिया, इस साइड का दिया यहाँ से शुरू कर लें, इस साइड पे दिया इधर से शुरू कर लें, तो यही एक डाइव आपको लगानी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आपने क्या करना है, आपने मोल्स और इक्विवेलेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
वो जो ओस्मोल है एंड वाला टॉपिक है वो आपको आ चुका है, वो मैं करवा आपको दूंगा नेक्स्ट किसी भी डे, वो समझे आपको आता है। अब आपने मोल्स और इक्विवेलेंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ मोनाश यूनिवर्सिटी। अभी आप एपेक के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हाथ नहीं आपका इतना फ्लुएंट नहीं हुआ कि आप वो क्वेश्चंस को भी डील कर सकें। आपके सामने सोल्यूशन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैंने ही आपको दे दिया क्योंकि बुक में किसी और तरीके से किए हुए हैं, वो इतना स्मूथ मुझे नहीं लगता। समटाइम कोई शॉर्टकट ले जाते हैं, वो वहीं पे सारा टाइम स्पेंड कर देता है स्टूडेंट अपना। तो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने कर दिए सॉल्व आपके सामने, इनको देखें। एमईक्यू के क्वेश्चन आप कुछ चैलेंज लेके करें, कुछ सोल्यूशन आपके सामने होगा, वहाँ बुक के ऊपर से हेल्प हो जाएगी। तो ये आपने करके रखने हैं। और एमईक्यू जो मिली ऑस्मोल है, छोटा सा टॉपिक है, वो कल इंशाल्लाह हम करेंगे ओवर दिस वीकेंड, ये आपने खत्म करना है। और इससे जो आगे है, इससे आगे अगर हम एक नज़र देखें, बल्कि रहने दे, क्या देखना, छोटे छोटे चैप्टर है इससे आगे, और कुछ भी नहीं है। 4-5 दिन की, एक एक दिन में एक एक चैप्टर करेंगे छोटा छोटा, वो फिनिश हो जाएगा। मेन टॉपिक ये था आज वाला। ठीक है जी, फिर खत्म करें आज का सेशन। बाकी आप प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट सेशन के अंदर उसको देख लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। जी वेलकम ऑल, अच्छी से प्रैक्टिस करें। थैंक यू एवरीवन, सर। अल्लाह हाफिज।